Very warm wishes to all. I, Dr. Sarita, with Dr. C.S. Yadav, sir, Assistant Professor, IIMT College of Science and Technology, BA Department. Welcome you all this live alumni conclave. I extend my warm welcome to the Managing Committee, for the faculty, and other our dear students with alumni, and each one of you who has connected with us. Today, we are going to connect with our beard alumni. Among us, we have Miss Vinita Chauhan, PGT Economics in Bloom International School, Greater Noida, West. Miss Shivani Pandey, PRT Mathematics, DVM School, Greater Noida. Mr. Vipin Kumar, TGT Social Studies, Atal Bal Vidyalaya, South Delhi, and Mr. Sudhakar Prajapati, English lecturer, Gurukul Vidyapeeth, Inter College, Lakhimpur, करूं? Khir. Before moving forward with the program, let me brief you about the vision and work culture of IIM. IIMT Group of Colleges, established in the year 1994, since its inception, IIMT as a group has drawn up leaps and bounds and achieved exemplary recognition from the industry and academia. At IIMT, we are committed to providing a value driven culture and creating a professional environment. As a large and diversified group, IIMT imparts knowledge in engineering, management, education, law, pharmacy, and so on. It has highly qualified and experienced faculty members in their respective functional areas. IIMT boasts of having more than 8,000 students in various courses in 6 colleges. The educational group has been dedicated to providing quality professional education through well accredited courses, seminars, conferences, guest lectures, industrial visits, and excellent academic facilities. We believe in all round development of students with a strong foundation based on pillars of knowledge, intellect, and values. The programs are structured to keep pace with the present dynamic and globalized scenario, meeting the requirements of industry and education. We are dedicated to delivering excellence in our academic programs. So now I'm going to brief you all about BEd department, IMT College of Science and Technology, Greater Noida, came into existence after receiving recognition from NCTE from offering teacher education course to a unit of 100 BEd students during the academic session 2006-7. The college is situated at plot number 20, Knowledge Park, 3, Greater Noida. It is recognized by NCTE and affiliated to CCS University, Meerut. It is a self-financed college managed by 7 Rotarians, all of whom are devoted to the service of humanities of the society. The college is established with a view of mold and the shapes to prospective teachers to be competent to transact the curricular experiences to the students of secondary schools and to produce quality teachers with great values so that they could contribute in task of nation building. This objective is being achieved by the college with the help of highly qualified teaching faculties. It is academically governed by CCS University Meerut. The college has a rich library with the latest reading, research, and reference material. Besides enriching the knowledge of teachers and students, the college has a psychological laboratory, an education technology laboratory, language laboratory, physical science laboratory, mathematics laboratory, chemistry and biology laboratory, art and craft laboratory, sports room, music room, seminar hall, conference hall, multipurpose hall, and open space for different purposes.
So now let's start a program with the interaction with our dear alumni. I would like to ask Miss Vinita Chauhan to introduce herself. Vinita, it's over to you. Very good afternoon to everyone. My name is Vinita Chauhan, and as per the qualification, I have did my graduation and post graduation from Amity University. I did my B.Ed from IIMT, batch number 2021. So and now I am currently doing teaching in Bloom International School, and I am having 2.5 year of experience in PGT economics. That's all, ma'am. Hello, am I audible, ma'am? हाँ विनीता ऑडिबल हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग क्लासेस हम जो तकनीकी है टेक्नोलॉजी का यूज शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कैसे करते हैं Okay. So today's our topic is how to use technology effectively in a teaching learning process. As we already know, technology has become an integral part of education, revolutionizing how teachers teach and how students learn. When used thoughtfully, it enhances engagement, personalized learning, and prepare students for the future. Technology has become an essential teaching in the modern classroom. It enhances the teaching learning process by making lesson interactive, accessible, personalized. When even effective technology is served as a powerful support for system of education to convey concept, engage student, and foster better understanding. As we know, now classes are already enriched with the project or having some smart boards through which you can show PPTs, you can show videos, audios, so that the learning process became more effective. These multimedia elements like visuals, audios makes learners learn lessons or more better or more in an effective way. As we know that every school is having a smart boards in their classroom only. If they're not having any smart board in their class, then they will prepare a separate room for that. That is visual room, AV or audio visual room. So smart board which allow teachers to prepare dynamic content, innotate better lessons, and encourage students to participate. These interactive tools help visualize concept like mathematic problems, map in a geography, diagram in a science, and even in a more relevant topics. So as we know, the technology has been increased, and teacher are also have to modernize according to the situation. So we also have to use more technology in that relation. As we use technology like video, like audios, like presentation, like PPTs, all these all this technology or all this content help the student to get more knowledge or learn topic very well. So there is also some kind of elements, like second element is digital simulation. This is very new into the technology. As we already know, that pilots has been trained in a simulation or visual labs, like before having जैसे कि सर आप बोल सकते हैं कि अगर पायलट्स हैं, पायलट को अगर हम डायरेक्टली एयरक्राफ्ट दे दे तो दैट विल बी अ मोर प्रॉब्लमेटिक. सो उससे पहले उन्होंने एक सिमुलेशन लैब्स बनाई जाती है जहां पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जो आपको एक रियलिटी इमेज देता है. सेम ऐसे ही आजकल टीचिंग्स में भी यूज होने लगे हैं. जैसे आपको केमिकल से रिलेटेड कोई भी आपको जैसे लैब्स होती हैं या फिजिक्स लैब्स होती है, वहां पर आपको सिमुलेशन ट्रेनिंग दी जाती है स्टूडेंट्स को, सो दैट उनको फियर ना हो, कुछ भी लॉस ना हो, कुछ हेल्थ इश्यूज ना हो. इसके लिए आपको सिमुलेशन ट्रेनिंग आजकल स्टार्ट हो गई है इन द स्कूल्स ऑल्सो. नाउ एज वी ऑलरेडी नो कि हमारे स्कूल्स जब कभी कभी होता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, हम स्कूल्स नहीं जा पाते, तो उस कंडीशन में हमें ऑनलाइन मोड भी अवेलेबल है. वी कैन लर्न और वी कैन हैव द क्लासेस इन द ऑनलाइन मोड एज वेल. Like
technology also help us to give the information or to share the information with the students, like platform like Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom. Teachers can share notes, assignment, multimedia content effortlessly. Student can access these material anytime, supporting independent learning. Connectivity to online classes. Technology also connect teachers with the student. When student are not in a offline mode, you can take classes while sitting in a home, and you can watch the lecture anytime whenever they are required. There is a option for that, that is you can store the lecture or you can save the lecture. As well as there is one more thing is, you can also assess your student through technology. You can create assessment in the technology while using the app. Like I have used Google Forms. Through Google Forms I can send the student the quizzes. They can solve, and instantly they will get the result also. So it engage the student with the technology for the learning process. So, as per the benefits of technology in a teaching aid, it enhance engagement of the students, understand better the topics. Third one is that is they will become more, you know, more prone to the topic as they learn effectively. Then they are efficient because they get the information, they get the lesson, they get the attendance instantly. So it is very effective mode of learning process. Okay, Ms. Shivani. So now I would like to say Ms. Shivani Pandey to introduce herself. Shivani, it's over to you. Shivani Pandey. Okay, Vinita. Yes, Yes, ma'am. Shivani Pandey. शिवानी आ गई Yes, ma'am. शिवानी Yes, sir. मैम शिवानी, Yes, ma'am. जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जब आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं क्लासरूम में, तो हाँ उस जी। टाइम आपको क्या लगता है कि जो आपका एकेडमिक कंटेंट है क्या वो मीनिंगफुल होता है ना? तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, जब हम टीचिंग कर रहे हैं और उस टाइम पर हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि लाइक टीचर्स हैं तो हम लोगों को पहले तो जो भी हमने बीएड में कंटेंट सीखा है, टेक्नोलॉजी के कुछ स्टेप्स हमने बीएड से ही मतलब एज ए टीचर जो परफेक्शन है वो हमें टीचर बीएड के सेशन से ही बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, जिसमें से टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड है कि लाइक टेक्नोलॉजी का यूज करके हम स्टूडेंट को इंगेज कर सकते हैं उनके वर्क के लिए कि लाइक यू नो बहुत सारा कंटेंट। हमारे में प्रॉब्लम हो गई है कुछ स्क्रीन से चल रहा नहीं चल रहा एम आई ऑडिबल मैम? Yes, yes, you are audible. ओके मैम, सॉरी डिस्टर्ब किया, सॉरी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजी में हम टेक्नोलॉजी का यूज करके हम स्टूडेंट्स को इंगेज कर सकते हैं कि लाइक क्रिएटिव वर्क करके, या फिर हम स्मार्ट बोर्ड का यूज करते हैं जब हम क्लास में स्मार्ट बोर्ड का यूज करते हैं, तो कोई भी आपका चैप्टर्स है तो उसका एक जो इंट्रोडक्शन होता है
जो एक फर्स्ट अपीयर होता है स्टूडेंट्स के लिए कि लाइक अगर इंट्रोडक्शन अच्छे से हमारा सेट हो जाए तो बच्चे उस चैप्टर को समझने में काफी इंटरेस्ट दिखाते हैं। और वो इंट्रोडक्शन हम एज अ स्मार्ट बोर्ड का यूज करके एग्जांपल्स की हेल्प लेकर 3D आर्ट्स का यूज करके एग्जांपल्स अच्छे से सेट करके हम अपने चैप्टर्स को इजीली बच्चों तक फाइंड आउट करा सकते हैं और बच्चे उस चीज को पढ़ने के लिए काफी इंटरेस्ट दिखाते हैं। एज माई एक्सपीरियंस इन द पीआरटी सेक्शन छोटे बच्चे होते हैं तो वो छोटे बच्चे चाहते हैं कि लाइक जो उनका रियल दुनिया है उससे वो रिलेट कर पाए और वो रिलेशन आई थिंक हम टेक्नोलॉजी का यूज करके बच्चों को अच्छे से फाइंड आउट करा सकते हैं। क्योंकि जब हम बुक रीडिंग कर रहे हैं बच्चों में वो इंटरेस्ट नहीं आएगा, वही हम स्मार्ट बोर्ड का यूज कर रहे हैं, कुछ वीडियोस का यूज कर रहे हैं, बहुत सारे आइडियाज हमें वहां से मिल जाएंगे। हम डिफरेंट डिफरेंट गेम्स टाइप का उनके लिए क्विज बना सकते हैं, डिफरेंट गेम्स ऐसे गेम्स ले सकते हैं एज अ मैथ्स टीचर कि लाइक शेप्स एंड पैटर्न का एक चैप्टर ले लिया, उसके लिए मैंने एक गेम्स बना दिया या एक क्विज रख दिया तो बच्चों में थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है, वो इंगेज होते हैं उस चीज के लिए। सेकेंड चीज, टेक्नोलॉजी का यूज करके हम टीचर्स स्टूडेंट की कनेक्ट में रहते हैं कि लाइक वी कैन कनेक्ट देयर पेरेंट्स, कि हम उनके पेरेंट्स से कनेक्शन में रहेंगे बाय थ्रू मैसेजेस ग्रुपिंग कि लाइक वो उनको कोई डाउट है स्टूडेंट्स को, वो अपने टीचर को पर्सनलाइज मैसेज कर सकते हैं कि मैम ये प्रॉब्लम है, तो मैम भी उनकी प्रॉब्लम को शेयर कर सकती है। देन टीचर के पास अगर कुछ प्रॉब्लम है कि लाइक Ma'am, your voice are not clear. एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am, you are audible, but ना disturbance ज़्यादा आ रहा है. I think किसी और का mic unmute है. ओके, बट देयर इज नो वन माइक अनम्यूट। यस यस, हम बच्चों की इंटेलिजेंस लेवल का चेक कर सकते हैं बाय द ई क्विज। हम जो क्विजेस बना सकते हैं जिससे बच्चों को तुरंत उसका रिस्पांस मिल जाता है। हम बच्चों के लिए फ्यूचर रेडी कर सकते हैं क्योंकि आज की जनरेशन टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है एज द एआई जनरेशन। सो उसका यूज करके हम बच्चों को टेक्नोलॉजी के कनेक्ट में ला सकते हैं कि लाइक वी आल्सो नो कि जहाँ की तुमने लोकेशन सेक्टर 64 बोल टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। हाँ हाँ यही तो खड़ा हूँ। बोलो B4B5 के पास। सभी लोग अपना म्यूट कर लें, केवल जो बोल रहे हैं उन्हीं का अनम्यूट होगा। सब लोग अपना वीडियो और ऑडियो दोनों म्यूट करके रखे, बंद कर लें। सभी स्टूडेंट अपना वीडियो ऑडियो म्यूट करके रखें। सारे रेड होने चाहिए, क्रॉस होना चाहिए लगा। सभी लोग म्यूट करें, उस पर फोटो भी ऑफ कर लें और वीडियो ऑडियो भी ऑफ कर लें, बस सुनिए उसमें। वीडियो ऑफ करिए आप। मे आई सर? ऑडिबल ऑडिबल बोलो। Yes. Technology allows personalized learning. Students can learn at their own speed. हम स्टूडेंट्स को उनकी जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग लर्न कर सकते हैं कि लाइक वो अगर कोई टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, अगर स्टूडेंट्स उस टेक्नोलॉजी लाइक कोई एक वीडियो है उसकी हेल्प से जानना चाहते हैं कि लाइक हमारा एक स्मार्ट क्लास है उसमें हम जो भी सेशन कर रहे हैं, जो भी हम बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो एक रिकॉर्डेड है। तो बच्चे अगर उनको वो चीज नहीं समझ आई है तो वो चीज उसका वीडियो का यूज करके रिपीट क्लासेस कर सकते हैं। उनको टीचर्स की हेल्प लेने की जरूरत नहीं होगी कि मैम प्लीज एक्सप्लेन वन मोर टाइम, कि और बच्चों को डिस्टर्ब हो। तो जो भी स्टूडेंट है, जो भी उसकी लर्निंग स्पीड है, उस स्पीड का यूज करके वो यूज कर सकते हैं कि लाइक वो 1 टाइम्स रिपीट करवाना चाह रहे हैं, 2 टाइम्स रिपीट कराना चाह रहे हैं। सो जो ये रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम है
ये टेक्नोलॉजी की वजह से स्टूडेंट्स काफी इंगेज हो सकते हैं अपने लर्निंग कैपेसिटी के लिए। हम बच्चों को फ्यूचर रेडी कर सकते हैं कि एज वी नो कि ये आप एआई जनरेशन आने वाला है, कि सब कुछ टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है। लाइक पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि लाइक हर महीने या फिर आफ्टर 2-3 मंथ्स आपका पॉल्यूशन की वजह से क्लासेस नहीं हो पाती बच्चों की। पेरेंट्स भी थोड़ा सा वो रखना चाहते हैं कि लाइक हमारे बच्चों को बीमारियों से वो बच सके। तो ये ऑनलाइन का जो सिस्टम आया है कोरोना के टाइम के बाद से, स्मार्ट क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, इसकी हेल्प से बच्चे उनका जो सिलेबस है वो भी ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, बच्चे अच्छे से कवर अप कर पाते हैं जो भी ऑनलाइन क्लासेस है। अगर बच्चे बीमार भी हैं तो वो अपने घर पर बैठे बैठे भी अपना ऑनलाइन क्लासेस से अपना जो भी उनका सिलेबस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। टीचर्स टेक्नोलॉजी का यूज करके बच्चों के लिए वर्कशीट्स, पीडीएफ, प्रेजेंटेशन कुछ ऐसे क्रिएटिव बना सकते हैं जिससे जो बच्चों को क्लास में नहीं समझ आ रहा था वहीं वो उस प्रेजेंटेशन की हेल्प लेकर, एनिमेशन की हेल्प लेकर, वीडियोस की हेल्प लेकर बच्चों को इजीली समझा सकते हैं। ओके शिवानी। एक मिनट में शिवानी, इसमें इस स्कूल में आप लोग टीचिंग कर रहे हैं, अगर जी देखा सर। जाए तो हम जो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो कितना इफेक्टिव हो रहा है, मतलब क्या सही मायने में बच्चों तक वो फैसिलिटीज पहुंच रही है, बच्चे उसका यूज कर पा रहे हैं या टीचर उसका यूज कर पा रहे हैं, कितना बेनिफिशियल है हमारे लिए? यस सर, जैसे कि मैं जिस स्कूल में वर्किंग हूँ, जिस स्कूल में मैं टीचिंग कर रही हूँ उसमें स्मार्ट क्लासेस की फैसिलिटी है टीचर्स के पास और स्टूडेंट्स के पास। सो उसकी हेल्प से हम बच्चों को उनका इंट्रोडक्शन सेट कराने में या फिर विद इन द सेशन की उनको जो भी चैप्टर्स हैं उससे रिलेटेड कुछ क्रिएटिव वीडियोस, कुछ क्रिएटिव वर्कशीट्स का यूज करके हम बच्चों के पास तक वो कनेक्ट करने की कोशिश कर पाते हैं। और आई गेस बच्चे भी उसमें अपना 100% इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं कि लाइक आज की जो जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा रहना चाहते हैं, कि लाइक वीडियोस, रील्स वो इतने ज्यादा जुड़ चुके हैं। तो उनको अगर हम वीडियोस की हेल्प लेकर के लाइक दिस वन, कि उनका कुछ वीडियो है उसको हम रिकॉर्डेड कर ले, अगर हमें वहां पर बच्चों को मिस्टेक्स अगर उनकी फाइंड आउट करानी है तो हम उनकी वीडियो से ही उनको समझा सकते हैं कि लाइक you are wrong here and there, so student also connect there कि like yes, और वो उसमें कंट्रोल भी करते हैं, कमांड करते हैं। एंड जो हमारा स्कूल है उसमें टेक्नोलॉजीज का यूज मोस्टली ज्यादा ही किया जाता है, कि लाइक वर्कशीट्स बनाना, प्रेजेंटेशंस, वीडियो, स्मार्ट क्लासेस। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि एज ए फ्रेशर और एज ए बिगनर कि इसका यूज करके जो हमारा टाइम था पढ़ने का और आज जो मेरा टाइम आया पढ़ाने का उसमें काफी डिफरेंस है। और बच्चे अपना 90 to 95% अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं कि यस, बिकॉज आई एम इन पीआरटी सेक्शन, 5th क्लास तक के स्टूडेंट हैं और उन स्टूडेंट्स में वो सारी चीजें डेवलप कराना जो कि एक हमारे टाइम पे आई थिंक बड़े स्टूडेंट्स में भी वो सारी चीजें नहीं थी, वो हम उन छोटे बच्चों में भी वो सारी क्रिएटिविटी उन टेक्नोलॉजीज का यूज करके कर पाते हैं। विनीता, एक प्रश्न है आपसे। ब्लूम इंटरनेशनल स्कूल आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पढ़ा रही हैं, तो जो आपकी क्लास है वो बड़ी क्लास है या छोटी क्लास है? तो सीनियर क्लासेस 11 सीनियर 12। क्लास। सीनियर क्लास के लिए जो ये टेक्नोलॉजी है, जो बच्चे हैं बड़े तो ज्यादा यूज करते होंगे, वो कितना यस सर। उनके लिए उपयोगी है? सर इवन यूज ही नहीं, हम लोग उनको इंडल्ज कराते हैं टेक्नोलॉजी में। लाइक दे हैव टू गिव द प्रेजेंटेशन, दे हैव टू गिव द टेस्ट ऑनलाइन एज वेल इन अ क्विज फॉर्म, इन अ फॉर्मेट ऑफ दैट। इवन जो उनके सीबीएसई से रिलेटेड जो भी आपका प्रोजेक्ट फाइल्स बनाते हैं उसमें भी वो एक सर्वे कंडक्ट कराते हैं फॉर द डेजर्टेशन ऑफ द फाइल्स। सो टेक्नोलॉजी, दे हैव टू यूज टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई एज वेल। सो उनके पैटर्न में ही है कि आपको स्टूडेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट देना है ताकि वो प्रिपेयर करे, लाइक पीपीटी बनाए,
देन उनको ग्रुप प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, देन उसके बाद क्या होता है, उससे बच्चे इंडल्ज हो जाते हैं उस एक्टिविटीज में. एंड बिफोर स्टार्टिंग अ लेक्चर वी हैव टू मेक अ प्रेजेंटेशन ऑफ as a scenario of whole the chapter, and we have to present in front of them to make them interested into the topic. जो हम ऑडियो विजुअल कैरियर्स का प्रयोग करते थे, ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री का, और जो हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो दोनों का क्या एस्पेक्ट एक ही है या दोनों चेंज है, या दोनों में ज्यादा इफेक्टिव आज के टाइम में कौन सा है? सर दोनों आजकल मैं बोलती हूँ कि एक जैसे ही हो गया है, एक ही हो गया है. बिकॉज एज अ टीचर हम भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, एज अ स्टूडेंट वो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं. और जो कोविड के बाद से जितना ऑनलाइन मेथड हुआ है, इवन द parents are involved in the student and teacher as well. They get the reports through us online. They even get the information about the homework online. They get the progress report online. Everything is indulged into the technology, which is everywhere. Like you have to get every single information on the school website, through the school only, even through the आप ये teachers. आप ये कह सकते हैं कि वो टेक्नोलॉजी है जिसके कारण हम लोग आज जुड़े हैं यहाँ पर, Yes, और sir. अपने स्कूल कॉलेज में जहाँ है वहाँ से लाइव टेलीकास्टिंग हो रही है, आप वहाँ से अपना कनेक्ट हैं, हमारे जो करंट ईयर के बच्चे हैं वो इवन आपको सुन ऑनलाइन पा रहे हैं। क्लासेस भी हम कंडक्ट कराते हैं स्कूल्स में भी. जैसे कभी कभी होता है कि हम क्लास ऑफलाइन नहीं करा सकते, या कोई पोल्यूशन का हो गया, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाती है, डीएम ऑर्डर्स आ जाते हैं सडनली. सो उस कंडीशंस में हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ही कंडक्ट कराते हैं. इससे यह कह सकते हैं कि बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि समय की बचत है। कई बार होता है कि जैसे कि यस, पेपर वर्क बहुत ज्यादा बच जाता है सर, क्योंकि हम वर्कशीट वगैरह सब ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं, होमवर्क ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं. इवन आजकल तो हम ये भी कर रहे हैं कि बच्चों को ऑनलाइन ही प्रेजेंट, लाइक पीडीएफ फॉर्म्स में या फिर डॉक्स प्रोफाइल फॉर्मेट में वो हमें अपना होमवर्क सेंड कर सकते हैं टू सेव द पेपर कोविड वर्क. के बाद से कोविड के बाद से मतलब टेक्नोलॉजी का स्कूलों में और कॉलेजों में एक तरीके से कर सकते हैं ज्यादा यूज हुआ। इवन अटेंडेंस प्रोसेस ऑल्सो गेटिंग ऑनलाइन. Parents can check their student their words are present in the school or not. Everything is online nowadays, sir. आप होमवर्क के लिए बच्चों के लिए क्या यूज करते हैं? जो बच्चे हैं उनके लिए क्या आप लोग कैसे कराते हैं? सर क्या होम असाइनमेंट का होम असाइनमेंट्स के लिए सर हम एक वर्कशीट प्रिपेयर करते हैं इन द पीडीएफ फॉर्मेट या डॉक्स फॉर्मेट. वी सेंड टू द स्टूडेंट ऑन their respective groups, a WhatsApp group, or either on the school website. They will download that format or that file directly from the website or from the WhatsApp group, and they do it in their notebook, or either they can send online to us if they are not available. Like some of the Yes. students are not here, they are in their village for some purposes, so they can send their homework online, but they have to be particular about the studies if they are not available. प्रेजेंटेशन भी आप बच्चों का आप लोग ऑनलाइन कराते हो? Sir, everything is online now. हम एक टॉपिक्स देते हैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग. हर जैसे 11th है या 12th है, सीबीएसई हमें टॉपिक्स प्रोवाइड करता है, ग्रुप्स बनाते हैं हम बच्चों के, और ग्रुप के अकॉर्डिंगली हम उनको प्रोजेक्ट देते हैं. वो एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हैं, देन दे हैव टू मेक द प्रेजेंटेशन, they have to prepare presentation and present that presentation in front of us. क्लास में तो एसपी का प्रयोग और आप लोग इसका इन सब का तो करते ही हो? Yes sir, every class having their own projector, so all the teachers use the technology for the teaching learning process as a teaching aid. स्मार्ट क्लासेस भी हैं आपके यहाँ? Yes sir, every class is a smart class sir. स्मार्ट क्लास है। शिवानी पांडे। यस सर। शिवानी, अभी जैसे आप लोगों ने बताया कि जो आज का टाइम है या मॉडर्न युग है, आज के टाइम को हम कहें तो हम टेक्नोलॉजी है जिससे बच्चों तक, जो दूर के भी बच्चे हैं बहुत सारे, उन तक आपकी बातें पहुंच रही हैं, या आप उनको कुछ चीजें होती है बच्चे उपस्थित नहीं हो पाते हैं, कुछ घर से बच्चों का प्रेजेंटेशन है, बहुत सारी चीजें कराते हैं, तो क्या आप लोगों के यहाँ भी स्कूलों में ये सब चलता है?
Yes, sir. In the TGT and PGT section, these kind of activities are happened. But in the PRT section, we cannot कि like students are not fully engaged for that. तो हम लोग उस कंडीशन में उन लोग के लिए टीचर से इन्वॉल्व रहते हैं कि लाइक उन वो टेक्नोलॉजी का यूज करके उनके लिए वर्कशीट्स बनाना, कुछ क्रिएटिव वीडियोस बनाना, या फिर हम वीडियोस में उनको इन्वॉल्व करते हैं कि लाइक बच्चा लर्निंग बाय डूइंग से सीखे, लेकिन उसमें भी हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं कि लाइक बच्चों अपने ही एक्शंस को उसमें देख सकते हैं और उससे कैचअप कर सकते हैं कि लाइक व्हाट वी आर डूइंग। बट इन द पीआरटी सेक्शन वी आल्सो वी डू फॉर द वर्कशीट, टेक्नोलॉजी का यूज करके हम उनके लिए असाइनमेंट्स बनाते हैं, वर्कशीट्स बनाते हैं। बट इन द पीजीटी सेक्शन आई हैव आल्सो सीन कि लाइक दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी आर हैपेंड बाय द स्टूडेंट्स, वो खुद ही स्टूडेंट्स ही ये सारी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि विनीता मैम ने अभी बोला। सुधाकर ऑडिबल? सुधाकर? सुधाकर? So, Shivani Pandey, I have a question for you. यस मैम। शिवानी, यस मैम। जैसे कि आप पीआरटी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, पीआरटी टीचर्स हैं, तो जैसा विनीता ने बताया कि जो सीनियर क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस जब चल रही होती हैं, तो किस तरीके से वो डील करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। तो आपके स्टूडेंट्स बहुत छोटे होते हैं, तो उस यस कंडीशन में आप कैसे डील करते हैं स्टूडेंट्स के साथ? मैम, सम्स आर क्रिएटिव स्टूडेंट्स, सम्स आर नॉटी स्टूडेंट्स, एंड सम्स आर लाइक यस, जो भी हम लोग बोल रहे हैं उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जो क्रिएटिव स्टूडेंट्स हैं, हम उनको थोड़ा सा ज्यादा इंगेज करते हैं कि लाइक इफ वी आर नॉट डूइंग, उनको हम कुछ ना बोले या फिर उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो फिर उनका स्टडीज में इंटरेस्ट डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं, आईक्यू लेवल थोड़ा सा उनका हाई है। तो ऐसे स्टूडेंट्स का यूज करके हम कि लाइक उन्हीं को प्रेजेंटेशन करने के लिए बोलते हैं कि लाइक जो भी हमारे स्मार्ट एनिमेशन चल रहा है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोल देते हैं, या फिर कोई एक ऐसी एक्टिविटी होती है कि लाइक पहले बच्चों ने उस वीडियो को देखा, देन उन्हीं बच्चों को बोलते हैं कि आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। सो टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए कि लाइक हमने अगर उनको होमवर्क के लिए वीडियो दिया है कि लाइक आपको इस तरह से ये एक्शन है, ऐसे करके लाना है, तो वो नहीं करेंगे। वहीं जब हम उनको वो चीज प्रेजेंट करते हैं, तो जो नॉटी स्टूडेंट्स हैं वो उसका यूज, उनका मैं यूज ज्यादातर ऐसे करती हूँ कि लाइक उनको मैं खुद ही वीडियो के लिए कि लाइक आपको ये अभी करके दिखाना है या फिर आपको अभी एक्सप्लेन करना है। तो इस कंडीशन में मैं ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा अपनाती हूँ कि लाइक आपको ही अभी नेक्स्ट आपका ही है, तो फिर मैं उनको एक्सप्लेनेशन के लिए खड़ा कर देती हूँ। फर्स्ट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं उनको चांस दिया जाता है, देन जो नॉटी स्टूडेंट्स हैं जो डिसिप्लिन में नहीं है या फिर जो डिसिप्लिन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को फिर आगे इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के साथ खड़ा कर दिया जाता है कि लाइक आपको भी इन्हीं की तरह परफॉर्म करना है, आपको नेक्स्ट आपको ही करना है। Even I want to add something. In our school, we have special child even in every section. So we have to indulge with those students very well, because they are a special child as well as they are slow learners. We have to make them sit with the good student or with the high IQ students, so that they can get into they can get involved into the that teaching learning process more. So for them technology is very important because they can see, they can learn through the audios. ओके शिवानी, छोटे स्टूडेंट्स जो होते हैं, तो जैसा आजकल ट्रेंड में है कि स्टूडेंट्स को हम प्ले वे मेथड से उनको पढ़ाते हैं। तो Yes. जैसे आप मैथमेटिक्स कराते हैं तो स्टूडेंट्स को एडिशन कराना होता है, सब्ट्रैक्शन कराना होता है, मल्टीप्लिकेशन है या फिर टेबल कराते हैं, तो उसके लिए आप कौन सी एक्टिविटीज का आप यूज करते हैं? किस तरीके से बच्चों को एंगेज करते हैं और प्ले वे मेथड का यूज करके आप बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ जी मैम, ज्यादातर मेरा जो टीचिंग मेथड है उसमें 2 to 3 पीरियड्स मेरे एक्टिविटीज के ही होते हैं मैथ्स के। तो उसमें हम कुछ
कंपोनेंट्स ले लेते हैं कि लाइक आइसक्रीम स्टिक्स का यूज कर लिया, या फिर कोई कैलकुलेशन है उसके लिए कुछ स्मार्ट ट्रिक्स होती हैं, तो हम ऐसी ट्रिक्स का यूज करके बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि लाइक मल्टीप्लिकेशन के लिए जो थ्रेड मेथड है, या फिर जो छोटे स्टूडेंट्स हैं कि लाइक सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनको कैरी वाले सम सिखाने हैं, तो उसके लिए कुछ अलग से कि शीट्स वगैरह का यूज कर लिया, या फिर आइसक्रीम स्टिक्स का यूज करके कुछ क्रिएटिव मेथड्स होते हैं, कुछ प्लेफुल मेथड्स होते हैं, इन्हीं का यूज करके हम लोग सिखाने की कोशिश करते हैं कि लाइक फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शंस के लिए ऑब्जेक्ट्स ले लिए, फिर उनको बोला कि इक्वल्स है या नहीं है, कि लाइक एक एप्पल है, एक बाइट एप्पल के बच्चों ने कट किया, देन उसके बाद उनसे पूछना जो हमारे क्लास में आसपास की विंडोज हैं उनकी शेप्स, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड है उसमें क्या कौन से शेप्स का आप यूज कर रहे हो, इसका एरिया निकालने के लिए आप जो भी हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में जो भी हो बच्चों के पास कंपोनेंट अवेलेबल है उन्हीं का यूज करके कि लाइक उनकी जो पेंसिल है उसकी कैसे लेंथ आप निकालोगे। अगर हमें लाइक मेजरमेंट का मैं चैप्टर रीड आउट करा रही हूँ तो मैं उनसे बोलती हूँ कि लाइक आपके हैंड में जो पेंसिल है और ये जो हमारा बोर्ड है इसकी लेंथ आप अगर मेजर करेंगे तो आप कैसे करेंगे, तो फिर बच्चे बोलेंगे कि लाइक इसमें 5 पेंसिल की लेंथ के इक्वल्स है मैम। देन सेकंड वंस की राइट रबर से आप लेंथ मेजर करो, वेइंग स्केल का यूज कर लिया, बच्चों को उसके बारे में समझाना कि लाइक दिस इज द ग्राम ऑब्जेक्ट, दिस इज द स्मॉलर ऑब्जेक्ट, दिस इज द हायर वेइंग ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ऐसे मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो भी हमारे आसपास अवेलेबल हैं, हम उनका यूज करके बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। देन उसके बाद अगर फिर भी अगर बच्चों के डाउट्स हैं तो देन हम उनको कुछ ऐसी वीडियोस, कुछ ऐसे एनिमेशन सिखाते हैं जिसकी वजह से उनके जो भी थोड़े बहुत जो डाउट रह गए हैं वो फिर सॉर्ट आउट हो जाते हैं। देन उसके बाद फिर हम लोग उनको वर्कशीट्स प्रोवाइड कराते हैं, क्रिएटिव वर्कशीट्स कि लाइक आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, देन मल्टीप्लीकेशन का जो आंसर होगा उसके अकॉर्डिंग नीचे कुछ कलर्स के नेम है, आपको फिर वो कलर्स अपनी पिक्चर में फिल करने हैं, और सभी स्टूडेंट्स की जो पिक्चर्स हैं वो सेम होनी चाहिए। तो बच्चे थोड़ा सा यस यूज करते हैं कि टेबल्स का, कि लाइक वो अगर उनको टेबल लर्न्स हैं तो वो अपने नंबर्स का यूज करके कलर्स का यूज करके फिर वो अपनी वर्कशीट्स को फिल करते हैं। सो इस काइंड्स के जो हम पैटर्न्स को थोड़ा सा यूज करते हैं। विनीता, एक प्रश्न है आपसे। यस सर। जो हम टेक्नोलॉजी का इसे यूज कर रहे हैं, लेकिन आपने बीएड में जो टीचिंग स्किल आपने सीखा था, जो शिक्षण कौशल होते हैं, जो डिफरेंट स्किल का आप जो स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं उसका कितना यूज कर पा रहे हैं? सो जैसे एक डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है, सपोज देर इज अ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, अगर मैं टेक्नोलॉजी का यूज करके डेमोन्स्ट्रेट करूं तो बच्चों को और ज्यादा लर्निंग इंक्रीज हो जाती है। सपोज करो सर, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, देन आई पुट अ पिक्चर ऑफ अ डॉलर and I try to convert it into a Indian rupees. So through that technology, I can enhance the credibility of the student to understand it very well. As well as sir, जैसे कि अगर मुझे बच्चों को रिसेशन के बारे में पढ़ाना है, so I can put our animated videos on the class. Through that, they can get more into it or get more information about it. Then I can demonstrate that topic accordingly. जो डेमोन्स्ट्रेशन के अलावा जैसे आप उसमें रीइंफोर्समेंट है या स्टिमुलस वेरिएशन है या सिस्टमेटिक एग्जांपल है, इस स्किल का भी प्रयोग छोटे बच्चों में कितना उपयोगी है? सॉरी सर, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। कह रहे हैं कि इसमें जो डिफरेंट टीचिंग स्किल है, चाहे उदाहरण कौशल हो या सिस्टमेटिक एग्जांपल हो या स्टिमुलस वेरिएशन है,
छोटे बच्चे हैं, आप उसमें स्टिमुलस का यूज करके कैसे बच्चों को और मोटिवेट करते हो किसी काम को करने के लिए, होमवर्क को कराने के लिए या क्लास में रिस्पॉन्स करने के लिए? सर कुछ मेथड्स ऐसे हैं कि लाइक हम कुछ बोर्ड पर बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देन आई विल आस्क कि वन बाय वन कि आपको उसके आंसर्स देने हैं, या फिर उनकी जो टीम्स डिवाइडेड कर दूंगी मैं कि लाइक ये टीम ए है, टीम बी है, टीम सी है, आपको अपनी टीम को विन कराना है। एक ग्रुप ना उसका वो रखना है कि लाइक आपका ही ग्रुप विन करना चाहिए। सो उन बच्चों में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन आता है उसकी वजह से कि बच्चे अपने ग्रुप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, और उस ग्रुप में कुछ आईक्यू लेवल हाई आईक्यू लेवल स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स भी उसमें हैं। तो इस वजह से बच्चों के अंदर वो जो फीलिंग्स है कि लाइक आप मुझसे कम इंटेलिजेंट हो, आप मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा, कि मैं इंटेलिजेंट हूं तो मेरा जो फ्रेंड है वो भी इंटेलिजेंट ही होना चाहिए। तो ये वाली जो फीलिंग्स है, आई थिंक उससे इसका गैप थोड़ा सा कम हो जाता है कि बच्चों में ग्रुपिज्म की फीलिंग आती है कि लाइक हमें अपने ग्रुप को विन कराना है, और बच्चे 100% अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। तो मैं तो ज्यादातर बच्चों को गेम्स मेथड से ही सिखा सकती हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, सेकंड थर्ड क्लास के या फोर्थ क्लास के, अगर उनके अंदर गेम्स नहीं आए कि लाइक उनको बोला जाए कि आपकी टीम ही विन करनी चाहिए, देन दे विल डू देयर 100%। इफ आई विल गिव द सेपरेट होमवर्क्स टू अदर, तो वो लोग So now I would like to ask Mr. Sudhakar Prajapati to introduce himself. It's our turn. सुधाकर, आवाज आ रही है आपको? सुधाकर? आ रही सर, आवाज आ रही। हाँ, वीडियो अपना ऑन कर लो आप। सुधाकर, जो आप इसमें शायद इंग्लिश के लेक्चरार हैं और बड़ी क्लास को पढ़ाते हैं आप लोग, तो वहाँ बच्चों को टेक्नोलॉजी यूज वहाँ पर हो पाता है बच्चों के लिए? जी सर। अच्छा, ऑडियो विजुअल एड्स का भी यूज आप लोग कराते हैं बच्चों को, जो शिक्षा सहायक सामग्री है? करवाते हैं सर ऑडियो विजुअल। अच्छा, तो बच्चे कैसे बना के लेके आते हैं, आप लोग कैसे कराते हैं प्रिपेयर? कुछ जो सर है हम लोग करवाते हैं क्लास में ही, और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को हम जो टीचिंग मटेरियल्स हैं या कुछ उनको सीखने की कुछ चीजें हैं, पोस्टर्स हैं, या कुछ हमें बनवानी है, कोई टूल बनवाना है उन बच्चों से, तो उनसे कहते हैं आप बना के लाइए, या उसको आप खरीद के लाइए, उसको उसको समझाते हैं सर, उसको मतलब देख के समझाते हैं सर। स्मार्ट क्लासरूम का कॉन्सेप्ट उधर है, क्योंकि अब लखीमपुर खीरी में है, लखनऊ के पास पड़ता है, तो उधर जो जी। इंटर कॉलेज हैं, क्योंकि स्कूलों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है, चल रही है या अभी नहीं है उधर? स्मार्ट क्लास है सर। हम्म। हेलो। हाँ, स्मार्ट क्लास की स्मार्ट क्लासेस सर हमारे यहाँ पे नहीं चलती हैं। दूर ले लिया आप लोगों का स्कूल का? जी। अरे कि बच्चों को फिर कोविड टाइम में या इस समय अभी आप लोग कभी कुछ ऑनलाइन कनेक्ट करना होता तो कैसे करते हैं बच्चों को? ऑनलाइन सर होता है इस माध्यम से, टैबलेट है उसके माध्यम से, मोबाइल फोन के माध्यम से, और कंप्यूटर भी रखा है उसके माध्यम से। तो आप ये कर सकते हैं कि जो हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं आज के टाइम में, इस टेक्नोलॉजी से शिक्षा में देखा जाए तो एक तरीके से नवाचार आया है, इनोवेशन हुआ है, और जो दूर दराज के लोग हैं कहीं भी कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी आने से उनको बेनिफिट हुआ है। जी सर, आवाज को क्लियर नहीं आ रही है, बहुत स्लो आवाज सर आ रही है। आवाज स्लो आ रही है, थोड़ा सा होगा किसी का म्यूट अनम्यूट का। ठीक है विनीता, एक प्रश्न और है आपसे। यस सर। स्मार्ट क्लासरूम का जो आप लोग यूज करते हैं, तो उसमें बच्चों को भी मौका देते हैं? यस सर, स्टूडेंट को भी मौका मिलता है सर, उसमें हम बच्चों को टॉपिक्स देते हैं, या फिर इंडिविजुअली भी हम लर्न कर, जैसे हम मैंने कोई लेक्चर दिया, इंडिविजुअली भी मैं किसी स्टूडेंट से पूछ सकती हूँ कि आप आके यहाँ पर
से, या फिर आप समझा दीजिए। नहीं तो बच्चे भी घर से भी अपना खुद से प्रिपेयर होके आते हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन टॉपिक्स, दे एक्सप्लेन इन द क्लास, दे आर वेल। सर सीनियर स्टूडेंट ना वेल प्रिपेयर्ड आते हैं हमेशा क्लासेस में, वो पहले से ही सारे टॉपिक्स को लर्न करके आते हैं, इवन क्वेश्चंस भी पूछते हैं। So we try to indulge more student into the this technology process. So we give them the topics, we give them the opportunities to come in the front and explain the topic about it. Yes, sir, we give the opportunity for the student. Even sir, we at the end we involve the student with the quizzes, and they get the instant result with the with that quiz if they are doing it in on a technology. So, I would like to invite Dr. C.S. Yadav, sir, Dean, IMT College of Science and Technology, for word of thanks. It's over to you, sir. Yes, thank you for inviting me for giving vote of thanks. सबसे पहले जो हमारे अलुमनाई है, कह सकते हैं प्रोमिनेंट एलुमनाई, विनीता चौहान, शिवानी पांडे, सुधाकर प्रजापति और विपिन, इन बच्चों को धन्यवाद देता हूं कि अभी अपने स्कूल और कॉलेज में है, क्योंकि इनकी किसी की छुट्टी हो गई है, कोई रास्ते में निकल रहा है, कोई 3 बजे पहुंच रहा है, कोई अभी इस प्रोग्राम के लिए कनेक्ट है। चाह रहे थे कि बच्चों को फिजिकली बुला के हम कनेक्ट कराए, लेकिन वही है कि सबके स्कूल का टाइमिंग ही 3 बजे तक है, तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, और कोई कहीं से है। तो मैं सभी अपने अलुमनाई को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और इस प्रोग्राम को इतने अच्छे तरीके से, जो भी बच्चों के प्रश्न थे, जो भी चैट कर रहे थे बच्चे, डाउट उनके ग्रुप में मैसेज बच्चे भेज रहे थे, जो उनके डाउट थे, जो भी प्रश्न आ रहे थे, हम बच्चों से प्रश्न कर रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से एक एक प्रश्नों का इन लोगों ने जवाब दिया। और जो हमारे करंट स्टूडेंट हैं उनको काफी सीखने को मिलेगा कि हम इन टेक्नोलॉजी का यूज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में 1 साल बाद 2 साल बाद ये भी किसी स्कूल में जाकर टीचिंग करेंगे, जैसे आप लोग कर रहे हैं। तो इनके लिए पहले से एक तरीके से आप लोग जो गाइडलाइन कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं, इनके लिए बहुत उपयोगी होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा। और जो जिस तरीके से आपने हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, किस तरीके से हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रयोग में टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में, आपने बहुत अच्छे तरीके से, लगता है कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा कि इसमें कोई प्रश्न हो सकते हैं। बहुत बखूबी से आपने सारे प्रश्नों का आप लोगों ने जवाब दिया, और जो भी स्टूडेंट के डाउट थे, जो भी उनके जिज्ञासा थी, जो मन में प्रश्न आ रहे थे, आपने बहुत अच्छे से उसका समाधान किया। आप लोगों को एक बार फिर से पुनः धन्यवाद समय देने के लिए। सरिता मैम को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि ये बच्चों से कनेक्ट रही, और मैम कल से ही बच्चों को गाइड कर रही थी, और आप लोग खुद ही स्कूल में टीचर हैं, किस तरीके से प्रोग्राम करना है, टॉपिक क्या है, तो मैडम काफी लगी रहती हैं, अभी भी देख रहे हैं। तो मैडम को भी धन्यवाद, और सभी फैकल्टी मेंबर को भी धन्यवाद, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें जिनका भी सहयोग रहा है। डिजिटल मीडिया टीम को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिनके वजह से आज ये प्रोग्राम चल रहा है। आप लोग देखते हैं कि हम कोई लखीमपुर खीरी है, कोई ग्रेटर नोएडा वेस्ट है, कोई दिल्ली है, कोई कहीं है, और ये टेक्नोलॉजी की ही वजह से जो आज प्लेटफॉर्म है, जो आज हम लोग जुड़े हैं, नहीं तो शायद चारों को आज यहाँ बुलाना होता तो कोई एक तो तैयार हो जाता, लेकिन 3-7 तैयार नहीं हो पाते। सबकी अपनी समस्याएं हैं। हमने काफी प्रयास किया कि नहीं, मंडे टू सैटरडे तो हमारा स्कूल है, हम तो आ ही नहीं सकते हैं, और तमाम इशू होते हैं, क्योंकि जहाँ आप जॉब करते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी के कारण ही आज हम लोग जुड़े हैं। तो जो भी डिजिटल मीडिया हमारी है, उस टीम को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन। Thank you, sir, for having us. थैंक यू सर। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, sir. थैंक यू सर। मीटिंग। नहीं